Hi friend, this is Manoj Himne, Assistant Professor and Head, Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Art, Commerce and Science College, Surtuli Lohar. Please subscribe the channel and get daily notification about the continuous lectures on your syllabus. Okay. In the previous videos, we had discussed about the introduction about the writer and the lesson, the Chicago speeches, and the speeches which is mentioned in the titles are delivered by the very famous personality Swami Vivekananda. As well as we had discussed the beginning part of the speeches and the welcome speech which is delivered by Swami Vivekananda in 11 September 1893 in the parliament. It means the religious parliament which is held in Chicago, America. Okay, now today we will discuss the address or the speech which is delivered by Swami Vivekananda at the final session of the parliament on 27 September 1893 in Chicago. The world's parliament of religions has become an accomplished fact, and the merciful Father has helped those who labored to bring it into existence and crowned with success their most unselfish labor. What does the writer says? The world parliament of religions क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जागतिक धर्म परिषद जो 1893 में भरी थी शिकागो में, वो एक रिलीजियस, वो एक धार्मिक परिषद थी, हैज बिकम अ अकम्प्लिश फैक्ट, और वो एक फैक्ट जो रियलिटी बेस्ड था, रियलिटी बेस्ड टोटली वो एक परिषद, धर्म परिषद वहाँ पे आयोजित किया गया था, और वहाँ पे जो हिंदू धर्म का जो रिप्रेजेंट, इंडिया का जो रिप्रेजेंट किया था वो थे स्वामी विवेकानंद. एंड इन दैट फाइनल सेशन स्वामी विवेकानंदा address to the people of America and the merciful Father, and in that speech he says the merciful Father has helped. काय म्हणतात ते की जो merciful Father mean it's mean the God, the Almighty has helped. उस गॉड ने, उस भगवान ने, ओ खुदा ने क्या सभी बंदों को क्या एक हेल्प किया है. दोज हु लेबर्ड टू ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस, जो क्या करते हैं, जो वास्तव में लाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में लाने की जो प्रयास करते हैं, लेबर करते हैं, एंड क्राउन विद सक्सेस, और उन्हीं को वो क्या यस सक्सेस मिलता है, देयर मोस्ट अनसेल्फिश लेबर, और क्या जो निस्वार्थपणे काय जो श्रम करत असतो त्याला साहजिकच त्याच्या जीवनामध्ये काय यश मिळत असतं. और वो क्या कह रहे हैं, माय थैंक्स टू दोज, स्वामी विवेकानंदा सेज माय थैंक्स टू दोज नोबल सोल्स who large hearts and love of truth force dream this wonderful dream and then realized. What did he say? My thanks to those people, those noble souls. वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का, उन नोबल पर्सन का मैं थैंक्स दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. whose large heart and love of truth, जे काय म्हणत आहेत, whose large heart and love, जे काय खूप हृदयाने आणि प्रेमाने जे सत्याचा मार्ग स्वीकारून जे स्वप्न बघत असतात आणि त्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याचे जे प्रयत्न करत असतात त्या लोकांना, जो ट्रुथफुली हु ट्राइंग टू acquire his success, I thanks to them.
अगेन ही सेज माय थँक्स. ते सांगत आहेत पुन्हा, बिकॉज द स्पीच इज द फायनल ॲड्रेस. फायनल ॲड्रेस म्हणजे शेवटचा भाग आहे हा, आणि त्यामध्ये ते ॲड्रेस करतात पीपलला, अँड दॅट्स वाय ही ट्राईंग टू एक्सप्रेस हिज थँक्स, feeling of thanks to the people. My thanks to the sower of liberal sentiment. तर पुन्हा त्या लोकांचं काय धन्यवाद मानू इच्छित आहे, that has overflowed this platform. What did he say? वो कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में, इस परिषद में जो भी लोग आए हैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ. My thanks to my thanks to this enlightened audience. Here he also express his thanks to the audience of that parliament. उस पार्लियामेंट में, उस परिषद में जो भी श्रोतागण आए हैं उन्हीं श्रोतागणों का वो दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, for their uniform kindness to meet and for their appreciation of every thought that tends to smooth the friction of religions. What did he say? मैं उन लोगों का, उन ऑडियंस का, उस श्रोतागणों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुनने के लिए यहाँ आने का प्रयास किया है. एंड फॉर दोज एप्रिशिएशन, और उन लोगों ने मेरे भाषण को, मेरे विचारों को एप्रिशिएट करने का जो प्रयास किया है उन लोगों को मैं, और मेरी जो रिलीजियस, धार्मिक, हमारे धर्म के बारे में जो सभी बातें हैं जो उन्होंने दिल से सुनी है, मैं उन सभी लोगों का क्या धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ. A few jarring notes were heard from time to time in this harmony. और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? A few jarring notes were heard from time to time in the harmony. जो समय समय पे, समय के अनुसार जो भी चीजें बदलती रहती है उन सभी चीजों को हार्मोनियसली, एक संगता रूप से जो एक्सेप्ट करने की कोशिश किया है उन सभी लोगों का क्या धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं. My special thanks to them. और वो एक स्पेशल थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, for they have by their striking contrast made general harmony the sweeter. जिन लोगों का उनके विचारों से, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जो विपरीत थे, जो अपोजिट थे, उन लोगों का भी वो दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं. Again, much has been said the common ground of religious unity. उन्होंने क्या, जो रिलीजियस यूनिटी है, जो धार्मिक एकता है, धार्मिक एकता के बारे में बहुत कुछ कहा है. I am not going just now to venture my own theory. Here, Swami Vivekananda trying to say that the story or the theory which he is trying to express, trying to deliver in that speech, it is not his own theory, but if anyone here, जो कोई भी वहां पे इस आशा से आया है, here hope that this unity will come by the triumph of any of the religions and the destruction of other, to him I say, brother, वो क्या कह रहे हैं? जो भी यहाँ पे धर्म के निर्माण या विजय के बारे में या डिस्ट्रक्शन के बारे में जो भी सोच रहा है, इन आशा से यहाँ पे आया है, उन सभी लोगों से वह कहना चाहते हैं, ब्रदर्स, yours is an impossible hope. वो कह रहे हैं मेरे भाई हो, जो तुम्हारी होप है, yours hope is an impossible hope. तुम जिस आशा से यहाँ पे आए हो कि किसी धर्म के डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच के आए हो कि ये धर्म बड़ा, ये धर्म छोटा, इस बात से आए तो यू आर रियली इम्पॉसिबल. ये जो तुम्हारी आशा है इम्पॉसिबल है. डू आई विश दैट द क्रिश्चियन वुड बिकम हिंदू. वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं सभी लोगों से, मैं ऐसी इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ क्या, दैट द क्रिश्चियन वुड बिकम हिंदू, जो क्रिश्चियन है वो हिंदू बन सकता है क्या, वुड बिकम बन सकता है. गॉड फॉरबिड,
गॉड से मैं क्षमा चाहता हूँ, भगवान से मैं क्षमा चाहता हूँ। डू आई विश दैट द हिंदू और बुद्धिस्ट वुड बिकम क्रिश्चियन। वो कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट या हिंदू है वो क्रिश्चियन बन सकता है, और गॉड से क्षमा चाहते हैं। द सीड इज पुट इन द ग्राउंड। वो कह रहे, सांगत आहेत ते, एखादी बीज जर आपण जमिनीमध्ये रोवलं, द अर्थ अँड द एअर अँड द वॉटर, पाणी, हवा आणि भूमी, जी जमीन माती जे म्हणतो, आर प्लेस अराउंड इट, आणि त्या बीजेच्या भोवती उस बीज के बाजू में पानी, हवा और जो माटी है उसको डाल दिया जाए। डज द सीड बिकम द अर्थ और द एयर और द वाटर। और कह रहे ऐसा हो सकता है क्या, यदि मैंने उस बीज के आजू बाजू में माटी डाला है, हवा डाली है और पानी डाला है, और वो पूछ रहे हैं कि ये जो बीज है, वो जो सीड है, वो सीड अर्थ बन सकती है, हवा बन सकता है या पानी बन सकता है। उनका कहना यह है कि यदि एनी पीपल who live around the another religion, यदि कोई आदमी किसी धर्म के, दूसरे धर्म के लोग के साथ रहता है, आदमी के साथ रहता है, पीपल के साथ रहता है, तो उसका इम्पैक्ट वो आदमी वैसा बन सकता है क्या? नो, इट बिकम्स अ प्लांट। वो कह रहे हैं कि यदि मैं सीड को अर्थ या एयर या वाटर बनाना चाहता हूँ, वो नहीं बन सकते, बिकॉज दैट इज सीड एंड इट ग्रोज लाइक अ प्लांट। उसका प्लांट ही बनेगा, उसका कोई वाटर नहीं बनेगा, ना अर्थ बनेगा, ना माटी बनेगी। इट डेवलप्स आफ्टर द लॉज ऑफ इट्स ओन ग्रोथ। वो उसके लॉ के हिसाब से वो ग्रोथ होगी। एसिमिलेट द एयर, वो हवा के साथ एसिमिलेट होगा, एयर के साथ, वाटर के साथ, हवा के साथ, पानी माटी के साथ। कन्वर्ट देम इनटू द प्लांट सब्सटेंस, और उसको, उस हवा को, उस भूमि को, उस पानी को वो कन्वर्ट करेगा इनटू द प्लांट सब्सटेंस, प्लांट के सब्सटेंस में जो भी उसको ग्रोथ के लिए जो भी लगता है, एंड ग्रोथ इनटू अ प्लांट, और वो लेके उस प्लांट की वो ग्रोथ करेगा। ये है एक धर्म, एक एग्जाम्पल दिया है पी का, और उसके ऊपर से वो धर्म की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।